But now let us take you through some of the latest investigations that have happened in this case ever since we visited that site. Now, the police have arrested Abhay Kumar, the owner of the MZ Wishtown, the builder firm, booked in connection with that cold-blooded murder, if one can really call it that. Now, who's this builder? The builder is the one who actually got the contract, we are made to understand earlier, to construct that mall that never came to be, which is why that deep, foundation was dug up, which is the place where water collected and ultimately Yuvraj's car and several other buses as well earlier had landed up. Now, the arrest comes after Chief Minister Yogi Adityanath took cognizance of the case, ordered a 3-member SIT probe as well, and also the removal of the Noida CEO. That happened last night, remember, the sacking of a junior engineer as well. What was that for? What did he do? We don't know. But when it led to outrage, after that happened, the CEO's removal, then came the SIT, and this morning has come the arrest of the builder as well. There are also now FIRs against 2 mall builders in this case. Now remember, Yuvraj died after his car plunged nearly 30 feet into the water. Filled pit now dug for that mall project, as we just showed you, in Sector 150. For close to 4 hours, like we've been saying, Yuvraj remained trapped, climbing onto the roof of his car, flashing his light, just how that AI image over there is showing, or attempting to sort of show you what could have happened that night, really. And rescue teams came, but could not save him at all. The site of tragedy, actually, that entire accident that took place, is part of a stalled Noida Sport City project, which we are now made to understand is a case already under CBI investigation. Let's tell you a little bit more about it. The Allahabad High Court had earlier termed the project a textbook example of corruption. The Allahabad High Court, let me say this again, had earlier termed this entire project, the one you see on your screen right now, where Yuvraj actually lost his life, where the car is still there and they've not been able to take it out so far, as a textbook example of corruption, pointing to alleged collusion between builders and the officials as well. This case has now raised serious questions on negligence, safety lapses, and of course accountability, with growing demands that justice must go beyond just this case, because there are several others like these which are just lying open, waiting for tragedies to actually unfold. Bhupendra Chaudhary, my colleague from there, joins us live now for more on this. Bhupendra, अभी हमने वो पूरी रिपोर्ट दिखाई जो हम सुबह आज शूट कर रहे थे. मैं जब आखिरी बार वहाँ से गई थी तो वो गाड़ी का अभी तब तक पता नहीं चल पाया था. वो जो ग्रैंड विटारा कार है वो निकाल नहीं पाए थे 4 दिन बाद भी. बड़ी खुशी थी वहाँ पर लोगों को, और जितने लोग निकल रहे थे वो कह रहे थे कि चलिए 4 दिन बाद तो आ गए, इंसान की जान नहीं बची, पर गाड़ी अभी भी अंदर पड़ी हुई है. अभी स्टेटस क्या है वहाँ पर? जी, बिल्कुल, उन्होंने काफ़ी देर करीब 4 घंटे से 6 घंटे तक रेस्क्यू अपना ऑपरेशन किया, लेकिन लास्टली वही रहा कि वो विफल रहे और गाड़ी अभी तक अंदर है, गाड़ी को नहीं निकाल पाए। यहाँ पे एसआईटी की टीम ज़रूर आई, उन्होंने यहाँ पे आके निरीक्षण किया और बोला गया कि पूरे मामले की जाँच की जा रही है और बाकी जो भी इसमें आगे दोषी है, उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि करीब 4 दिन बाद यहाँ पे रेस्क्यू किया गया, जो पहले ही दिन होना चाहिए था। नोएडा एक ऐसा शहर है जो यूपी की शो विंडो कहा जाता है, उसके बावजूद यहाँ पे इस तरह का 4 दिन बाद ये रेस्क्यू किया गया और फर्स्ट डे जो वही बच्चा था युवराज मेहता, वो अपनी गाड़ी पे हिम्मत करके बैठा हुआ था, करीब 3 से 4 घंटे तक गाड़ी पे बैठा रहा और इस उम्मीद में बैठा रहा कि मुझे बचा लिया जाएगा। लेकिन ये सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर है कि कुछ भी नहीं करा गया, सब एक-दूसरे के भरोसे बैठे रहे और लास्टली उस बच्चे को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जी। बट ये बहुत ही विचित्र है ना भूपेंद्र, अगर 4 दिन बाद, चलिए मीडिया टेंशन के बाद आप आए वहाँ पर, चलिए 4 दिन मीडिया टेंशन के बाद आपकी एनडीआरएफ की टीम्स पहुंची, 2 बोट्स गईं और उन्होंने वहाँ पर डाइवर्स थे वो अंदर गए, लेकिन उसके बाद भी उनको गाड़ी ही नहीं मिली है. दिस इज रियली वियर्ड. बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे गौतम बुद्ध नगर एक शहर है और शहर में कभी भी इस तरह की चीज़ों के लिए, चाहे फायर डिपार्टमेंट हो या नोएडा अथॉरिटी हो, इनके लिए एक बहुत बड़ा बजट पास होता है। इसमें काफ़ी सुविधाएँ दी जाती हैं कि सेफ्टी पर्पज़ से 10-10 करोड़ की गाड़ियाँ भी दी जाती हैं, कि अगर किसी तरह की कोई आपदा आती है, तो उसे ये इस्तेमाल करें। बड़ा सवाल उठता है कि जो हर साल बजट उठता है और जो ये सेफ्टी के उपकरण होते हैं,
उनमें से कोई भी अभी तक क्यों नहीं निवेश करेंगे। और जिस वक़्त वो अपनी गुहार लगा रहा था, और सबसे बड़ा Hmm. सवाल ये है कि अगर वो गाड़ी में गिर के बेहोश हो जाता तो शायद कोई पूछने वाला भी नहीं। वो गाड़ी में से निकला, उसने हिम्मत करके अपने फ़ादर को बुलाया, लोकेशन दी, पुलिस Hmm. को इन्फॉर्म Hmm. किया गया, बाकी डिपार्टमेंट को Hmm. इन्फॉर्म किया गया, एनडीआरएफ Hmm. को इन्फॉर्म किया गया, लेकिन कोई भी उसे बचा नहीं पाया। और Hmm. बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि 4 दिन हो गए और अभी तक गाड़ी भी नहीं निकाल पाए। जी। भूपिंदर, एक और चीज़ है जो मुझे बहुत समय से खटक रही है। जब मैं वहाँ पर थी तब भी मैं देखना चाह रही थी कि गाड़ी की स्पीड पर कुछ सवाल उठ रहे हैं कि क्या गाड़ी ऐसी स्पीड पर थी कि वो सीधे बम्प खा के आगे तक गिर गई? क्या वो इतनी दूर था कि फायर डिपार्टमेंट का कैसे इतनी दूर पहुंच गया कि फायर डिपार्टमेंट ने ट्राई करा कि वो अपना वहाँ पर रस्सी वगैरह फेंके पर उससे वो निकाल नहीं पाए उन्हें, जितना भी उन्होंने एफर्ट करा उस पर? क्या एक एंगल है जो एसआईटी एक्सप्लोर करेगी? जी, बिल्कुल, इसमें जो है ना ये देखा जा रहा है, यहाँ के जो लोग हैं उनका भी कहना ये है कि जब ये एक्सीडेंट हुआ था तो करीब रात के 12 बज रहे थे, और 12 बजे जो कोहरा था वो बहुत ज़्यादा था। उसके बावजूद जो हम्म। गाड़ी की स्पीड थी, जिस हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है कि गाड़ी इस झील में, इस गड्ढे में बहुत आगे जाके गिरी है, वो स्लो हम्म। स्पीड में नहीं गिर सकती है। गाड़ी की स्पीड करीब 80 से 100 के बीच में होगी, जिसके हम्म। अंदाज़ा लगाया जा रहा है तभी गाड़ी जो है इतनी दूर जाके गिरी है। क्योंकि अगर गाड़ी हम्म। नॉर्मल स्पीड में होती तो ब्रेक लगाने से वैसे ही 30-40% कम हो जाती है। और उसके बाद हम्म। शायद गड्ढे में गिरती भी तो आस-पास रुक जाती। लेकिन गाड़ी की हम्म। स्पीड ये माना जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से गाड़ी काफ़ी आगे तक चली गई। और जो फायर के जी। लोग हैं उनसे भी, उनने उनके आला अधिकारियों से हमने बात करी, तो उनका कहना ये भी था कि फायर के लोग तो ज़रूर इस पानी में उतरे, और लेकिन जो है उनकी रेंज से काफ़ी दूर था। लेकिन जो सुविधा हम्म। उन्होंने माँगी थी, जो चीज़ें उन्हें माँगी गई थी, वो हम्म। शायद रात में उपलब्ध नहीं थी, या फिर जो आला अधिकारियों को इसके बारे में हम्म। इन्फॉर्म नहीं किया गया, जिसकी वजह से एक बच्चे की जान चली गई। जी। जी। एक्चुअली ग्रैंड विटारा की या तो स्पीड बहुत तेज़ थी, बिकॉज़ अगर आप देखें तो वो जो पूरी हमने रोड दिखाई है लोगों को, हमने जो ग्राउंड रिपोर्ट करी, यू कैन सी दैट दैट एंटायर वॉल इज़ ब्रोकन, इट्स ब्रीच्ड. That breach, when you see, and I saw it with my own eyes, cannot be with the car. It had to be from the previous, accident of the truck that had gone in, almost gone in. The guy was finally safe, nobody died. But the truck had almost gotten. So that wall was actually breached. And that's, the breach through which the car actually went in. But it's a sad, sad event, terribly, shocking to say the least. And for anybody who's a resident of Noida, this should shake you up. Because, like I said, this is the life, this is the quality of life that we lead. We're able to afford houses worth 3 CR, but we are not able to get basic, decent road arrangement, or even, God forbid, even if you manage to get yourself on top of the car, manage to fight it out, manage all of those things, even if you manage to get the authorities in time, there is no guarantee that they'll bring you out. There is no guarantee that they'll be equipped or trained or have the resources to actually help one single individual. So that's the story of Noida, but that's not where it's ending. Let's bring you more. It seems like Noida Authority is not learning from its mistakes at all. About 11 months ago, a similar kind of incident took place in Greater Noida, where a 32-year-old Bharat Bhati's car fell into an open drain. And tragically, he also lost his life. This is not an isolated incident, as I'm repeatedly saying. This is happening again and again and again, but nobody seems to care. My colleague Himanshu Mishra found out more. 1 मार्च को भरत भाटी नाम के एक युवक की ठीक इस जगह पर ही मौत हुई थी। दोपहर 1:30 बजे थे और भरत भाटी इस रोड से सीधे गए और उन्होंने, शायद उनको पता न था या फिर उनको जानकारी थी या नहीं थी। दोपहर 1:30 बजे तो फॉग भी नहीं होता, लेकिन ये सामने जो आप अब देख रहे हैं तमाम बैरिकेड वगैरह, या आप देख रहे हैं सामने बड़ा सा ब्रेकर बना हुआ है, ये सब कुछ नहीं था। अब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ज़रूर परिवर्तन है जो देखने को मिली है। सबसे पहले सड़क से जो टी पॉइंट है उससे करीब 50 मीटर पहले सावधान, आगे सड़क बंद है, ये क्लियर बोर्ड लगा है। यहाँ से जब हम आगे अगर आएँ तो आगे आके अगर हम देखें तो एक बड़ा ब्रेकर बनाया गया है यहाँ पर, कि जिस पर आपको गाड़ी स्लो करनी ही पड़ेगी। अगर आप आ रहे हैं, चाहे आपके पास 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, यहाँ पहुँच कर आपको अपनी गाड़ी
कि स्पीड कम करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अच्छा खासा बड़ा ये ब्रेकर बनाया गया है। जब भरत भाटी की यहाँ मौके पे मौत हो गई थी तो हरिंद्र भाटी यहाँ पर पहुंचे थे। आप यहाँ पर कितनी देर बाद आए थे? मैं यहाँ पर 1 तारीख में ही आ गया था। 1 मार्च को ही पहुंच गए 1 मार्च को ही पहुँच गया था, तो मैंने यहाँ पे आकर के देखा था। अब तो यहाँ पे ब्रेकर भी लग गए हैं। हाँ। 1 साल 11 महीने हो गए इन बातों को। अब तो ब्रेकर भी लग गए, सामने बैरिकेटिंग लग गया। उस समय पे यहाँ पे ना तो बैरिकेटिंग था, ना यहाँ पे ब्रेकर थे, कुछ भी नहीं था। तो सीधा रोड आता है, इसी से बिल्कुल सीधा नाला था। ये देख रहे हैं आप, रेडिसन सामने चमक रहा है आपको। अगर कोई भी इस रोड से आता है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे रोड है सामने। तो वो गाड़ी सीधी गई और उसी में दिन के करीब 1:30-2 का समय था, 1:30-2 बजे का। तो वो सीधी गाड़ी जाकर के गिर पड़ी उसमें, और गिरने से उसकी वहीं पर मौके मौत होगी, क्योंकि ये रोड थोड़ा कम चलता है। तो यहाँ पर भी डिलीवरी बॉय आए थे, उन्होंने उस गाड़ी को देखा था। उस समय तक उस लड़के की मौत हो गई थी। मेरे साले का साला था वो, भरत भाटी। और मैंने लगातार ग्रेट नॉर्थ प्राधिकरण में भी इसकी शिकायत की थी कि इस तरह के जो पॉइंट हैं, इन सभी पॉइंटों को बंद किया जाए। I really hope when the SIT sits into this case, they look into every past instance that has happened in Noida and Greater Noida as well. My colleague is right when he says that Noida is the showcase for UP. And if this is the situation here in Noida, you can only imagine what the rest of the state will look like.